Hello friends. So now UPSC prelims has been delayed. So what can be done now? This is what everybody wants an answer to. That is why this special video, special session. So what can be done? What are the takeaways from yesterday's notification? So let me try to guide you, help you in the process ahead. In the process ahead, what has been done now? The notification says May 20 will be the day when they will decide the further course, and they will give you at least 30 days to go further, at least 30 days to move further or further notice. So one thing we are for sure, 45 days at least. From today we have 45 days at least. So when we have 45 days, so I say the fog is now cleared or now away, but the mist still remains. As good aspirants, we know that fog has lesser visibility, mist has comparatively more. So now what is our surety? 45 days all of us have, it might be expendable, but still there is mist. What is one more surety that we fail to consider sometimes? That tougher competition is expected. Tougher competition इज एक्सपेक्टेड नाउ दोज एस्पिरेंट्स जो प्रवासी ट्रेनों में चढ़कर चले गए, जो दिल्ली में फंसे थे, अब वो घर पे बैठ के पढ़ाई कर पाएंगे 45 दिन एटलीस्ट. सो कंपटीशन टफर होगा तो स्ट्रैटेजी और भी कॉम्प्रिहेंसिव और भी बेटर होनी चाहिए. सो व्हाट कैन बी डन? व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी? व्हाट is to be done for these 45 days? So one thing for sure, that one size does not fit all. One size cannot fit all, right? So considering that, what should be done depends upon your own preparation till now, your own past, your own present, your own pun, your own pap, right? So what pap? So what I'll do is I'll divide the students into 2 or 3 categories, and according to that make a plan category wise. So first category of students, first category that you have appeared or written the mains earlier or appeared in interview. So अगर आपने मेंस पहले लिखा और इंटरव्यू दिया हुआ है, सो अब आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी बेस्ट है कि May 20 तक एटलीस्ट टिल May 20 यू फोकस ऑन मेंस आंसर राइटिंग, your optional answer writing and essay writing. You focus on these 3 things. And fourth, but obviously, current affair addition required. जो महीने अब ऐड ऑन करने पड़ेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हम मई में पेपर एक्सपेक्ट कर रहे थे तो प्रोबेबली हम मार्च तक करंट अफेयर्स कर रहे थे. अब एटलीस्ट जून में होगा, एटलीस्ट जून के बाद भी होगा. सो एटलीस्ट मार्च के आगे अप्रैल मई का करंट अफेयर्स ऐड ऑन तो करेंगे, बाकी आगे जो चलता रहेगा होता रहेगा, राइट? सो इफ यू हैव अपीयर्ड इन मेंस एंड इंटरव्यू एंड यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द प्री मेंस, आंसर राइटिंग कीजिए, ऑप्शनल आंसर राइटिंग कीजिए, एसे राइटिंग कीजिए और करंट अफेयर्स ऐड ऑन कीजिए टिल May 20, राइट? देन द सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, कैटेगरी नंबर 2 is those who have prepared very well. They have followed their timetable throughout the year. They have appeared for the test throughout the year and scored 105 and above. सारा साल प्रीलिम्स के जो हमने टेस्ट दिए हैं उसमें कंसिस्टेंटली एट एन एवरेज स्कोर मेरा 105 से ऊपर आ रहा है. मैंने अपने सारे सोर्सेज कवर कर लिए हैं. सो अब मैं कॉन्फिडेंट था कि प्रीलिम होगा, मैं तो वेट ही कर रहा था 31 मई का, बट अब प्रीलिम रुक गया, तो अब मैं क्या करूं? सो इनके लिए क्या है जी, आपके जो मेन स्पेसिफिक, पहले आप एसए को टारगेट करें, एसए के साथ साथ एक सिक्योरिटी उठा लें. एसए और सिक्योरिटी को May 20 तक अपने टाइम टेबल में इंक्लूड कर लो. बाकी जो आपका May 20 तक टाइम टेबल था आप उसे बढ़िया फॉलो कर रहे थे, May 20 तक ये दोनों कवर कर लो साथ में, एंड जो अपना पुराना टाइम टेबल था उसको कैरी ऑन करते रहो, राइट?
सो दिस इज अ ग्रेट स्ट्रैटेजी। अगर आगे बढ़ता है, लेट्स से May 20 को बोलते हैं कि अब June 1 को डिसाइड करेंगे, उसके बाद 30 दिन मिलेंगे, सो एक और मेन स्पेसिफिक छोटा कंपोनेंट उठा लेना, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री। So you pick up world history along with that, right? So going further, the last category, and many of us over the years fall in this. This is काश category. काश, जो अभी तक नोटिफिकेशन आने तक सोच रहे थे कि काश मैं 10 दिन पहले पढ़ लिया होता, काश मैंने लक्ष्मीकांत पूरी कर ली होती, काश मैंने क्लास लगा ली होती, काश मैंने टेस्ट दे लिए होते। सो उनके लिए क्या, अब उनके लिए दे रिक्वायर समथिंग विच इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव और मोर डिटेल्ड अ डिस्कशन देन अदर्स। सो व्हाट डू दे रिक्वायर? सो उनके लिए, उनको हेल्प करने के लिए, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, आई हैव डिजाइंड दिस QIP, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर देम। जो काश वाले एस्पिरेंट्स थे, जिनके 100 से नंबर कम आ रहे थे प्रीलिम्स में, जिनका कुछ प्रीलिम का लेफ्ट ओवर रह गया, जो डाउटफुल थे प्रीलिम के बारे में ही, दैट प्रीलिम ही नहीं क्लियर हो रहा है यार मेरा तो। सो इफ यू वर डाउटफुल अबाउट दैट, इफ यू वर डाउटफुल अबाउट द प्रीलिम्स, इफ यू वर डाउटफुल अबाउट अपियरिंग इन द प्रीलिम्स दिस टाइम, या फिर यू वर नॉट श्योर कि होगा कि नहीं होगा, सो डाउटफुल थे, तो आपके लिए क्या है, यू विल हैव 4 डिविजन्स, 2 hours, 2 hours, 4 hours in a day, and once a week. So 2 hours, 2 hours, 2 hours and once a week. अब ये क्या है मेरे कोर्स के लिए, या फिर ये क्या है, 2-2, 4-4 घंटे आप अपने आप भी कर सकते हैं। So what can be done is 2 hours means ये आंसर राइटिंग एंड टॉपिक डिस्कशन। व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक डिस्कशन? जैसे अब टॉपिक्स जो मेंस के लिए हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट हो गए हैं, फॉर एग्जांपल डिजीज। अब डिजीज बेस्ड टॉपिक में हमें डिटेल में जाने की लोड़ है, बिकॉज कोरोना आ गया है। सो कोरोना आ गया, तो अब क्या क्या सवाल हो सकते हैं इसमें, कि भाई डीजनरेटिव डिजीज क्या होता है, कॉन्जेनाइटल डिजीज क्या होता है, वायरल डिजीज और ऐसा कौन सा इन्फ्लुएंजा है जो वायरल से नहीं होता जबकि सारे होते हैं। सो ऑल दीज आंसर्स। फर्दर ये वाले मेंस के टॉपिक एवरी डेली 2 hours की सुबह सुबह क्लास हो जाएगी। दिस विल किल लेजीनेस। लेजीनेस को किल करने के लिए सुबह सुबह 9:30 के आसपास, 9, 9:30 बजे के आसपास एक क्लास हो जाएगी आपकी, जिसमें एक एक टॉपिक रोज जो जो आपका ऐड ऑन होता जाएगा, क्वालिटी इंप्रूव करता जाएगा, राइट। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 घंटे की रोज क्लास, उसमें जितने टॉपिक हो सकेंगे 2, 3, 4, 10 हम डेली कवर करेंगे, और जब टॉपिक वर्थवाइल हो जाएंगे तो हम उस पर आंसर राइटिंग भी कर लेंगे, राइट। सो एवरी 3rd डे, 4th डे, जब भी पॉसिबल होगा, टॉपिक खत्म होगा तो हम आंसर राइटिंग भी कर लेंगे, और उसको पर्सनली इवेल्युएट कर दूंगा मैं। देन 2 hours किस चीज के लिए चाहिए? दीज 2 hours आर फॉर दिस करंट अफेयर्स एड ऑन। करंट अफेयर्स एड ऑन, कि जो मेरा रह रहा था मैं करंट अफेयर्स में एड ऑन करता जाऊंगा, कि भाई हाँ मैंने मार्च तक पढ़ा था, मैंने फेब तक पढ़ा था, तो आगे, राइट। देन 4 hours क्या करेंगे, 4 to 5 hours डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क, यू विल हैव टू कंटिन्यू जो हमारा काश था, जो काश में ये कर लेता, काश में वो कर लेता, अपना टाइम टेबल, जो पुराने पाप करे उनको धोना 4 घंटे रोज, राइट। पुराने पापों को 4 घंटे रोज धोना है। एंड वंस अ वीक दिस वुड बी essay, a special lecture on how to write a brilliant essay would be held in this within this course. And let me tell you, one of the highest marks in the country I have already scored in the essay once, so no problem about the quality, I think. So going further, this course and the prospectus would be detailed. It would also include a prelim test, prelims की टेस्ट सीरीज। कैसी? कि कंपोनेंट वाइज, कि मॉक टेस्ट, दोनों कंपोनेंट प्लस मॉक प्लस करंट अफेयर्स, जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं और जो आपने सारा साल पढ़ा है उसका भी टेस्ट लिया जाएगा। सो इट विल हेल्प यू मेक टाइम टेबल, कि 4 दिन में पॉलिटी कवर करना था, पॉलिटी का टेस्ट हो गया, 3 दिन में लेट्स से ज्योग्राफी कवर करना था, ज्योग्राफी का टेस्ट हो गया। सो आप कर भी रहे हैं और आप टेस्ट भी हो रहे हैं, करंट अफेयर्स के लिए भी, प्रीलिम के लिए भी, मेंस के लिए भी। सो इफ यू विश टू ज्वाइन, please WhatsApp to register. We'll talk about this. And so if you fall in
if you fall in category 1, now you know what to do. If you fall in category 2, now you know what to do. If you fall in category 3, now still you know what to do. Right? So whichever category, follow the idea. Don't worry. The competition is tougher, but God has given us a chance to improve ourselves, पाप धोने के लिए, पुण्य बढ़ाने के लिए और पास होने के लिए. So all the best everybody. See you soon back again. Thank you.